Yes, my dear learners, I'll continue with the same chapter in economics, that is chapter number 11, Emerging Issues in Indian Economy. Now, students, we have done the meaning of urbanization, we have done the definition of urbanization, we have even seen the trends of urbanization. Today, we will see the effects of urbanization, but before that, a little bit of introduction of effects of urbanization. Now, India is only second to China in the process of urbanization, matlab not only in population but also in urbanization. At present, it can be seen that urbanization is taking place at a faster rate, which indicates a fast rate of economic development. Yes, urbanization बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है. नाउ दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू वेरियस इफेक्ट्स. ऑब्वियसली बात है, इसके इफेक्ट्स भी हैं. एंड यस, जैसे आप लोगों ने छोटे क्लासेस में ऐसे में हमेशा लिखा होगा दैट एवरी कॉइन हैज़ गॉट टू साइड्स. ओवर हियर ऑल्सो urbanization has got yes two different sides. The very first one, that is the very first effect, is the positive one and the next one is negative one, obviously. Now अब हम दोनों ही effects इसी क्लास में पढ़ेंगे. So let me start with the positive effects of urbanization. One line introduction. Urbanization that took place in India has created various welcome effects which can be studied as positive effects. Yes, बहुत सारे effects ऐसे आए हैं जो अच्छे हुए हैं. So that is why welcome effects बोला गया है यहाँ पे. So अच्छे effects में सबसे पहला effect है increase in infrastructural facilities. Yes, infrastructure facilities have improved, have increased a lot. Now, इसका explanation, the textbook says that there is continuous increase in infrastructure facilities like education, health, banking, transportation, communication, insurance, electricity, etc. Yes, with the passage of time, ये सारी जो facilities है ना वो increase होती गई है. एंड यस, ये सारी फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं. सो इट इज़ बट नेचुरल कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती गई हैं. इस वजह से क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बड़ा है तो बट नेचुरल वेजेस, सैलरीज विल इंक्रीज एंड purchasing power of the people will also increase. Purchasing power will increase, then people will be able to buy more of goods and services, and that necessitates the setting of more industries, creating more employment opportunities. So मतलब it is like a cycle कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, एजुकेशन इंक्रीज़ हुआ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा ये सब इंक्रीज़ हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लोगों का जिनको नौकरी नहीं थी उन्हें भी मिलने लगी. धीरे धीरे वो ट्रेंड होते गए, सीनियर होते गए, उनका सैलरी, उनका वेजेस जो है वो बढ़ता गया एंड द डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज. अब वो डिमांड इंक्रीज हुआ है तो उसको उतना सप्लाई करने के लिए इट इज़ बट नेचुरल दैट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज. नाउ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई तो अगेन सेम साइकिल वापस से चला. इंडस्ट्रीज बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो उनका भी वेजेस, सैलरी इंक्रीज होगा एंड देन द परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर मोर. सो द साइकिल गोज ऑन. यस, सो as per our textbook, creating more employment opportunities, ये हमने लास्ट यहाँ तक देखा था. So increase in employment leads to income rise and rise in purchasing power. Rise in purchasing power necessitates the setting up of new industries. Employment increases and this cycle keeps on moving on, which is yes a very positive effect. Now the second one is reduction in poverty. Now but natural है कि अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज द पावर्टी विल इंक्रीज. अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोगों को जॉब मिलना चालू हुई है. ना जॉब मिलना चालू हुई है तो ऑब्वियस सी बात है पावर्टी जो है वो रिड्यूस होने लगी है. Poverty and unemployment are mutually interrelated. Due to urbanization, industry and service sector creates large-scale employment in the cities, which reduces poverty. Yes, urbanization, industrialization, increase in service sector. तो इस वजह से employment opportunities increase हुई हैं and hence the poverty has reduced. Moreover, rural poor and unemployed
who come to urban areas get employment according to their capabilities, which also leads to reduction in poverty. Yes, जो रूरल एरिया से लोग आते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बट नेचुरली कि सबको अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से नौकरी मिलेगी, एंड यस द poverty will reduce. Poverty has reduced actually. Now the third one, cultural development. Now the people get the knowledge, they get the advanced educational facilities. The people, those who come from rural areas to urban areas, उनका cultural development होता है. They come to know about many other different things, जिसकी वजह से they develop. In cities, advanced educational facilities are available, and through that an individual can attain all-round development, which improves personality of an individual and makes him a cultural individual of society. Yes, now एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, मैंने बोला मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग आते हैं तो उनका एजुकेशन लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है. उनका डेवलपमेंट सिर्फ एक फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होने लगता है. उनका पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव होने लगता है, एंड वो एक कल्चरल इंडिविजुअल में बदल जाते हैं. दे फाइंड अ न्यू person in themselves. Now apart from this, libraries with modern amenities, that is modern facilities, book stalls and various cultural programs enrich people culturally. Yes, जो cities होती हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे अलग अलग बुक्स होती हैं, तो लोग अपने अपने शौक़ के हिसाब से पढ़ सकते हैं. इससे उनको दूसरे कल्चर के बारे में भी नॉलेज होता है. बुक स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो दे कैन नो अबाउट द कल्चर, दे कैन एनरिच देमसेल्व्स with the culture of other people also. Now let us move on to the fourth point, that is ultra modern health facilities, that is health services. Now क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, एंड स्पेशली लोग आते हैं अर्बन एरिया में for health services and for education purpose also. So due to the process of urbanization, population in urban area rise, which cater to various requirements of better health along with education. Yes, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अर्बन एरियाज़ में लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग आते हैं. यस, द बेसिक रीज़न इज़ एम्प्लॉयमेंट, मगर बहुत सारे लोग भी ऑल नो, हमने स्टडी किया है कि दे कम फॉर एन बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो. अब क्योंकि अब और इस वजह से ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती हैं. फैसिलिटीज़ होती हैं, अब धीरे धीरे वो और ज़्यादा रिच होती जाती है, एनहेंस होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है. दैट इज़ द हेल्थ एंड द एजुकेशन फैसिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है. टुडे वी कैन सी नंबर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स. यस, पहले के टाइम पे ना मतलब सब जो डॉक्टर्स थे उनका अपना खुद का हॉस्पिटल्स से फॉर एग्जाम्पल हुआ करता था, बट नाउ वी सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि एक ही हॉस्पिटल के अंडर में यू विल फाइंड ओवर द कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो, यू विल फाइंड एन आई स्पेशलिस्ट ऑल्सो, यू विल फाइंड ऑर्थो ऑल्सो, यू विल फाइंड पीडियाट्रिशियन ऑल्सो, यू विल फाइंड गायनेक ऑल्सो. सो दैट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ भी ईजीली अवेलेबल होंगी. जो डिफरेंट टेस्ट हैं वहाँ पे वो ईजीली हो जाते हैं. सो दैट इज़ यस, अल्ट्रा मॉडर्न health services have increased a lot in urban areas. Now today we can see number of multi-speciality hospitals flourishing in cities like Ahmedabad, where ultra-modern treatment is available for every disease in one place. Now moreover, government and local self-government also start hospitals which directly benefits the poor and the middle class in the society. Now धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है वो भी अपने अपने हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, जिससे कि जो पुअर क्लास है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. दे गेट द बेनिफिट्स, नॉट ओनली द पुअर बट इवन द मिडिल क्लास पीपल इन द सोसाइटी, and that influences positivity, the health and the productivity of the people. Now क्योंकि सर्विसेज इजीली अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल है, तो प्राइसेस भी उसके इतने नहीं होते हैं फॉर द डिफरेंट टेस्ट, तो इट इज़ बट नेचुरल कि लोगों की हेल्थ जो है वो
इम्प्रूव होगी, एंड जो इम्प्रूव्ड जिनकी हेल्थ अच्छी होगी वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी। द नेक्स्ट सोशल इफेक्ट्स, उसमें भी मॉडर्न थिंकिंग। The thinking of the people of urban areas is modern because compared to villages, cities have better education, cultural development and modern means of communication. Yes, कंपैरिजन अगर हम करें तो जो मॉडर्न थिंकिंग है वो अर्बन एरियाज दैट इज सिटीज़ में ज़्यादा है विलेजेस के कंपैरिजन में, बिकॉज पीपल आर एबल टू इजीली कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अर्बन एरियाज। एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, कल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स जो हमने अभी अभी स्टडी किया। तो इस वजह से लोगों की जो सोच है ना वो भी मॉडर्न होती जाती है। दे आर नो मोर नैरो माइंडेड, ऑर्थोडॉक्स थॉट्स लोगों के नहीं होते हैं। So that is again a very good positive effect of it. This makes them quickly adapt themselves to modern world and by the way of decency and dignity of words, actions, thoughts, lifestyle, etc. Yes, उनका lifestyle, उनके बोलने का तरीका, their thoughts also change, their lifestyle changes and there is a positive change in them. Let us move on to next पॉजिटिव इफेक्ट, दैट इज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगेन सेम चीज़ है कि नाउ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, सो इट इज़ बट नेचुरल। सैलरी वेजेस इंक्रीज़ होंगे, वो इंक्रीज़ होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज़ होना ही। अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इन राइज इन इनकम एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मेक्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग higher in urban areas as compared to rural areas. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऐसा सर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रूरल एरियाज़ का दैट विल बी बेटर देन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑफ अर्बन एरियाज विल ऑब्वियसली बी बेटर दैन द रूरल एरियाज। यस, रूरल एरियाज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं होता है जितना अर्बन एरियाज़ का होता है। Now let us move on to the negative effects of urbanization. Now due to uncontrolled urbanization, various negative effects have been seen in India which are as follows, yes, which we will be studying. Yes, as I said, we will be studying about both the positive one and the negative one. Now uncontrolled urbanization है, बहुत ज़्यादा हो जाता है and anything in excess will always prove to be bad. So yes, we will be studying about the negative effects. The very first one is income inequalities. Now income inequalities very first negative effect है urbanization का। इसमें हमको बोला गया है कि urban areas में there are people those who are highly educated, there are entrepreneurs, there are business people, इनका इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि जो दूसरा पार्ट ऑफ द सोसाइटी में होता है दैट इज लेबरर्स जो होते हैं उनका इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो ऑब्वियसली देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि जो लेबर क्लास होता है उनके पास इतना स्किल नहीं होता, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, दे नो ओनली हाउ टू डू द फिजिकल वर्क एंड इस वजह से क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है ना, तो इस वजह से उनका इनकम जो है वो कम रहता है। सो यस, इनकम कम है तो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं। नाउ इन डिटेल इट सेज दैट on one hand, in urban areas, there are intellectuals who are very highly educated, entrepreneurs, business magnates, whose income levels are very high. While on the other hand, there are poor laborers who are illiterates, who do not have any skill or expertise, and who do not know anything except physical labor, and hence their incomes are very low. Thus, income inequalities are very obvious in urban areas. Now the second one, social inequalities. Social inequalities are seen along with economic inequalities, that is income inequalities जो हमने अभी अभी देखा। तो social inequalities के साथ income inequalities भी नोट की गई हैं। The rich and the educated class have modern thinking, while the uneducated poor class have blunt and age-old thinking who get exploited in urban areas. Yes, जो rich people होते हैं वो educated होते हैं and the educated and rich people जो होते हैं उनके thoughts जो होते हैं वो अलग होते हैं। They have modern thinking which is obviously not at all the orthodox one. तो उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग रहता है, जबकि जो गांव से आए हुए होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनका थिंकिंग जो होता है वो बहुत पुराने ज़माने का होता है एंड यस इस वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। दैट इज़ जिनकी थिंकिंग एज ओल्ड होती है दे गेट एक्सप्लॉइटेड इन
urban areas. The third one is problem of slum dwelling. Now, as I said to people के लोग migrate हो जाते हैं, मगर it is not possible to provide with all the facilities so early. So it is but natural कि they don't get the proper place to live. जो पुअर लोग होते हैं, जो माइग्रेट होते हैं, दे डोंट गेट अ प्रॉपर प्लेस टू लिव. पीपल कमिंग टू द सिटीज फ्रॉम विलेजेस आर फोर्स्ड टू लिव इन हटमेंट्स. यस, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो दे लिव इन हटमेंट्स इन डर्टी स्लम्स एज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ पक्का हाउस. यस, वो पुअर लोग हैं, इसीलिए वो आए होते हैं शहर में अर्न करने के लिए. तो इतना जल्दी तो उनके पास पैसा इतना नहीं आएगा ना कि वो एक अपने लिए अच्छा सा घर खरीद कर सकें या रेंट ले सकें. तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है. दे लिव इन स्लम्स, दे लिव इन हट्स, एंड उनका इनकम भी इतना अच्छा नहीं होता है. दे कंस्टिट्यूट द लेबर क्लास एंड देयर अफोर्डेबिलिटी इज वेरी लो. यस, दे आर अनेबल टू अफोर्ड अ पक्का हाउस. यस, देयर इनकम इज ऑल्सो लो. एंड यस, लेबर क्लास जो है वो बेसिकली स्लम एरियाज में रहते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते. Now let us move on to the fourth point, that is law and order problem. Uncontrolled urbanization has led to population explosion in urban areas, which results in serious problems. For example, the per capita vehicle in cities is high and is seen to be rising continuously, which creates traffic problems. Yes, urbanization हमने beginning में ही देखा था, इस टॉपिक के बिगनिंग में, कि अर्बनाइजेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड है एंड पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती जा रही है. इट इज़ इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं. नाउ ओवर हियर एज आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरिया, सो अर्बन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. सो इट इज़ बट नेचुरल दैट द नंबर ऑफ व्हीकल्स विल increase. The per capita vehicle in the cities is high and is seen to be rising continuously, which creates traffic problems. Yes, traffic problem बढ़ता जा रहा है in urban areas. Now, moreover, in the absence of employment opportunities and ability to earn enough income, people resort to theft, loot, etc. This is what we studied in the negative effects of migration also. When such antisocial activities take place on large scale, the day-to-day law and order situation proves insufficient and the situation deteriorates. Yes, अगर ऐसे काम that is of theft है, लूट है, ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ अगर इंक्रीज होती जाएंगी, सो जो सिचुएशन है वो ख़राब होती जाएगी, वो इनसफिशेंट हो जाएगी. एंड यस, सिचुएशन एज आई सेड विल डिटोरिएट. इट मीन्स सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जाएगी. The fifth one is question of infrastructure facilities. No doubt the facilities have increased, but still there is a problem. What we will be studying over here. There is shortage of transportation, health, roads, shortage of pure drinking water and such other infrastructure facilities, which results in problems of waterborne diseases. Yes, infrastructure facilities बड़ी हैं मगर उतनी भी नहीं बड़ी हैं जितना लोग माइग्रेट होके आते हैं. सो फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी है, एंड इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं. जैसे कि प्रॉपर प्योर ड्रिंकिंग वाटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीज़ होने लगेंगी. क्वेश्चन ऑफ सैनिटाइजेशन इज़ अ प्रॉब्लम. शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. यस, दिस प्रूव्स दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज़ फेलिंग समवेयर. So these all things are the negative effects of urbanization as far as infrastructure facilities are seen. So the next and the last one is problem of environmental pollution. Now, as urbanization is the result of industrialization, वो हम जानते ही हैं. Pollution level reaches beyond limits due to different industries. Some industries increase हुई हैं, इस वजह से urbanization हुआ है. अब industries जो है वो increase होती जाएंगी, तो इस वजह से pollution जो है वो एक level से ज़्यादा increase हो जाएगा. Pollution increase होगा तो obvious सी बात है there will be problem to the environment also. The dirt and the squalor means a place which is very dirty, which is very unpleasant.
ऑल्सो क्रिएट्स फर्दर प्रॉब्लम्स। यानी कि एक तरफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ डर्ट एंड स्क्वेलर का प्रॉब्लम है। Example is given to you people that more than 50% of poor population suffer from skin and respiratory diseases. So ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है तो इससे सिर्फ एयर पोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। इस वजह से जो आसपास के लोग वहाँ रहते हैं ना, उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगता है। इधर आपको बताया गया है कि पीपल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगती है, स्किन डिजीजेस होने लगती हैं लोगों को। सो इट्स नॉट ओनली एनवायरमेंटल पोल्यूशन बट इवन people also suffer from many diseases. So yes, these were all the negative effects of urbanization, students, and yes, I'm done with the chapter itself. And thank you, students.